Hello everyone. Welcome to the daily Hindu analysis that we started on 25th of June 2025. People who have been following it ever since have been writing to us and they are actually benefiting from these sessions. Now, these sessions would be useful for people who are appearing for this examination called as CLAT. Okay, extremely important when we talk about this examination called CLAT because a lot of passages that you face in the critical reasoning section and the English section are coming directly from the newspapers. Once you have grip over the themes and issues that are coming in the newspapers, a lot of passages will be a cakewalk for you. Also, the newspapers will be extremely important in answering your general knowledge part, wherein questions are coming from your current affairs. Also, this becomes important in a lot of legal reasoning questions, where the questions are coming from the current legal developments happening in and around India. If we talk about people who are appearing for CUET, the session becomes extremely important because GK is directly mentioned under paper 3, also called as general aptitude test. Also, the newspaper clearly plays a huge role in questions of parajumbles, one word substitution, antonyms, synonyms, idioms, and phrases, which will eventually help you ace your paper 1, which is also called as the language paper, and most of the students opt for English. So let's say if we are discussing an issue, you should have a notebook of yours. Once you have understood the issue, read that article from the newspaper, find out the meaning of the words that you were not able to comprehend or understand. This is how your vocabulary shall tremendously increase. And if we talk about people who are appearing for IPMAT, which is integrated program in management just after class 12, people who are opting for integrated BBA and MBA. Now, how this session becomes crucial for you people. See, if we talk about the premium most examination, we have to talk about IPM Indore. Now, if we see the selection criteria of IPMAT Indore, 55% weightage is given to your written test, and 35% weightage is given to your personal interviews. So your personal interviews will revolve, your personal interviews shall revolve around you and the developments happening around you. So you have to be aware of the developments happening around you, hence newspaper becomes extremely important. Chalo. So now coming and talking about the newspaper of August 19th, and the edition is the international edition of the Hindu paper, right? So I have told you the significance of this session. Let us understand. So the first news, let's start from here. So Zelensky, Trump hope for trilateral talks with Putin. है ना, इसको समझने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं. ऑल्सो माइंड यू, जब 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ था, तब क्लैट में आपसे जेलेंस्की साहब का पूरा नाम पूछ लिया था. So questions can come from these arenas also. So if we are discussing any leaders, we should at least understand the issue that is happening. Now the news says Zelensky, Trump hope for trilateral talks with Putin. Now let us try to understand the whole issue. See, so let us say there is this place called Russia. Russia was previously called as USSR, but USSR eventually got broken down into 15 countries in the year 1991. So disintegration of USSR took place, and the largest country out of these 15 countries was Russia. Now, ever after the World War II जब हमारा खत्म होगा in the year 1945, two powers shall emerge as the leading powers of the world. One was USA, which was backing capitalism, and the second one was USSR, which was backing communism or let's say socialism. है ना, तो दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होगा, इवेंचुअली USSR हारेगा and it will get broken down into 15 such countries. Now, US in the year 1948, what US will do? US will make an organization called as NATO, North Atlantic Treaty Organization. अभी एक organization में around 32 countries are the members. They have their headquarters in Belgium. Belgium में कहाँ पे? Brussels. So Brussels है ना, and it was established in the year 19. This is being led by US. Now what makes NATO very different from other organization? अगर आप NATO की 32 countries में से member हो, तो attack on one is attack on all.
विच मीन्स अगर आप नेटो के 32 कंट्रीज में किसी भी एक कंट्री पे अटैक करोगे तो 32 के 32 कंट्रीज आप पे इकट्ठे लड़ाई करेंगे, राइट? अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, है ना? तो नाउ यूक्रेन वाज आल्सो पार्ट ऑफ दीज 15 कंट्रीज. नाउ यूक्रेन हैज नेवर लाइक्ड रशिया, क्योंकि रशिया यूएसएसआर से तो निकल के आया है. बट देर आर सर्टेन रीजन ऑफ यूक्रेन विच स्पीक द रशियन लैंग्वेज, लाइकली cities like Luhansk, cities like Donetsk, जहाँ पे रशिया अपना क्लेम करता है ना? तो नाउ रशिया वांटेड सर्टेन रीजन्स फ्रॉम यूक्रेन. यूक्रेन स्टार्टेड रिटेलिएटिंग. नाउ यूक्रेन वेंट टू यूएस आस्किंग दैट वी वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो. यूक्रेन ने बोला हमें नेटो का मेंबर बनना है. अब नेटो का मेंबर बनते ही अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल. मतलब अगर कल को अटैक ऑन ऑल, कल को अगर यूक्रेन पे अटैक होगा करने आएंगे. नाउ दिस वुड हैव बीन वेरी ड्रेडफुल फॉर रशिया. अब रशिया यूक्रेन को अकेले पीट नहीं पाता बिकॉज 32 कंट्रीज वुड हैव कम एंड फॉट विद रशिया. तो रशिया सेड यूक्रेन यू वोंट ज्वाइन द नेटो, आप नेटो ज्वाइन नहीं करोगे. और लड़ाई चलती आई है 2022 से चल रही है. अब लड़ाई रुकने का नाम नहीं लेती, है ना? सो द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इज नॉट like it's not happening, like it's not gonna end soon, bro. So now what Donald Trump said when Donald Trump became the president of United States, also called as POTUS. POTUS means president of the United States. Now Donald Trump said when I'll come at helm I will make sure that the Russia and Ukraine war is stopped. रशिया यूक्रेन वॉर 2022 में स्टार्ट हो रहा है. डोनाल्ड ट्रंप 2025 में पावर में आ रहे हैं. तो नाउ डोनाल्ड ट्रंप हैड दिस टास्क ऑफ स्टॉपिंग द वॉर. अब इसी से रिलेटेड आर्टिकल आया है कि भाई यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की बैठे थे एंड वी हैड डोनाल्ड ट्रंप सिटिंग फ्रॉम यूएस. अच्छा, साथ में यूरोपियन यूनियन के भी लोग बैठे थे. नाउ व्हाई यूरोपियन यूनियन? बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज एन इंटीग्रल ऑर्गेनाइजेशन इन यूक्रेन. भी कहाँ पे आता है? यूरोप में. तो यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज विच हैव अ कॉमन करेंसी कॉल्ड एज द यूरो, है ना? एंड हैज इट्स हेडक्वार्टर एट बेल्जियम. बेल्जियम में कहाँ? ब्रसल्स में, जहाँ पे नेटो का भी हेडक्वार्टर है. अब डोनाल्ड ट्रंप ईयू और यूक्रेन ने बैठ के बोला है कि वी माइट एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद पुतिन. नाउ पुतिन वुड बी रिप्रेजेंटिंग रशिया. एंड नॉट टू फॉरगेट, अभी कुछ ही दिन पहले पुतिन प्लस डोनाल्ड ट्रंप मेट एट अलास्का. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, नाउ अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएस. यूएस का 51st स्टेट है अलास्का. अलास्का वॉज बॉट बाय यूएस फ्रॉम यूएसएसआर in the year 1867. This Alaska USSR, but it sold it to USA. So basically what I'm trying to tell you is, since Alaska is somewhere here, so now Alaska will share boundary with Russia. Now which strait क्या होता है? Strait का मतलब होता है जैसे यहाँ पे देखो, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है. लैंड मास नंबर 1, लैंड मास नंबर 2, ये वाटर बॉडी कहलाती है पाक स्ट्रेट. तो देर आर डिफरेंट स्टेट्स इन द वर्ल्ड. ऐसे ही रशिया का ये वाला रीजन और यहाँ का अलास्का का रीजन, क्योंकि मैप तो लाइक ये तो गोल हो जाएगा ना. तो बेसिकली ये अलास्का का रीजन और ये रशिया का रीजन, यहाँ पे जो वाटर बॉडी डिवाइड करती है, दिस इज कॉल्ड एज बेरिंग स्ट्रेट. ऑल ऑफ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज अलास्का में ये सारी चीज़ें हो रही हैं. फिलहाल न्यूज़पेपर में आर्टिकल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपियन यूनियन और जेलेंस्की साहब मिले एंड नाउ दे हैव सेड दैट वी माइट हैव अ ट्राइलेटरल टॉक विद मिस्टर पुतिन ऑन द फ्यूचर ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर. शायद वॉर रुक भी जाए अगर ये सक्सेसफुल होता है, राइट? अच्छा, यूएस ने क्या बोला? यूएस ने क्लियरली एक चीज़ बोल दिया है कि भाई लिसन, यूक्रेन यू विल नॉट बी अलाउड इन नेटो बट वी विल गिव यू नेटो लाइक सिक्योरिटी. इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है. नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे बट वील गिव यू अ नेटो लाइक सिक्योरिटी, वी आर अश्योरिंग यू. नाउ दिस हैज नो मीनिंग. अभी देखते हैं क्या होता है. फिलहाल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, you are capable enough to read this article of the newspaper which came today in the morning. So this thing, now you can understand everything that is written here. Now coming on to the next article. The next article says India bloc considers moving a motion seeking removal of chief election commissioner. इसको भी sum up करते हैं. Listen. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji said. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji said, for a true and vibrant democracy. Now what is a democracy? Democracy comes from two words, demos which means people and cracy which means power. So when the power is in the hands of people, it is called as democracy.
India is also a democracy and the power is in the hands of people because we have given to ourselves the constitution. We the people of India give to ourselves. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो जिससे हमारा देश चलता है वो हमने अपने आप को खुद से दे रखा है. तो अल्टीमेट सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया. वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हु विल इवेंचुअली टेक डिसीजंस ऑन आवर बिहाफ. तो इन इंडिया वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना. आप डायरेक्ट डिसीजंस नहीं लेते, लोगों को चूज करते हो. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. नाउ बी आर अम्बेडकर जी सेड फॉर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी यू नीड टू हैव 4 थिंग्स. करेक्ट. उन्होंने बोला हमारे देश के 4 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें अच्छे से चलना चाहिए. वन इज योर सुप्रीम कोर्ट mentioned in article 124 of the Indian Constitution. Then is your comptroller and auditor general mentioned in article 148 of the Indian Constitution. Then is your UPSC which is mentioned in article 315, and then comes your election commission mentioned in article 324. So election commission is responsible to conduct the elections in this country, and everyone would appreciate the fact that elections should be fair and transparent, क्योंकि अगर fair और transparent नहीं होंगे तो problem हो जाएगी. Now article 326 of the Indian Constitution says any person irrespective of his caste, color, race, religion, sex or place of birth shall be eligible to vote. 18 if he is above the age 18, and one person shall have only one vote. अब राहुल गांधी जी ने एलिगेशन लगाया कि भाई हमारे यहाँ तो हो रहे. अब जब राहुल गांधी जी ने एलिगेशन लगाया तो बदले में इलेक्शन कमीशन हैड टू कम. इलेक्शन कमीशन के इस समय चीफ हैं कौन? ज्ञानेश कुमार जी. ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. वी हैव इन टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट, मेंशन्ड इन आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल्सो वी कैन से इलेक्शन कमीशन बॉडी बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ ज्ञानेश कुमार जी सेड कि राहुल गांधी जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, एफिडेविट देना पड़ेगा. मैंने कल कवर कराया था. खैर अभी कंक्लूजन पे आते हैं. कंक्लूजन ये है कि जो ऑपोजिशन है इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिया ब्लॉक, जिसमें बहुत सारी पार्टीज हैं. ममता बनर्जी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, राहुल गांधी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और आपकी अखिलेश यादव जी की पार्टी है. सो यू हैव पार्टी ऑफ द ऑपोजिशन लीडर ऑफ इंडिया, राइट. तो इन लोगों ने बोला है वी वांट हिज रिमूवल, वी वांट ज्ञानेश कुमार रिमूवल बाय वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ बीजेपी. नाउ व्हाई वुड ही वर्क एज एन एजेंट ऑफ, बिकॉज इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके साथ? पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंशन्ड इन आर्टिकल 74. आर्टिकल 74 में ये बात क्लियरली लिखी है कि दैट द प्रेसिडेंट शैल वर्क ऑन द aid and advice given by the council of ministers. Eventually the president of India has to elect the election commissioners. So the opposition is blaming that these election commissioners are working in favor of BJP so that a particular party is winning the elections. They are trying to rob the elections. तो अब हम इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की बात कर रहे हैं. कौन? इंडिया ब्लॉक वाले. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होता कैसे है. पहले याद रखो इंडिया में कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं? 3. इलेक्शन कमीशन फॉर्म कब हुआ था? 25 जनवरी 1950. इसीलिए 25 जनवरी को बनाते हैं नेशनल वोटर्स डे. इलेक्शन कमिश्नर विल रिटायर एट द एज ऑफ 65 और 6 इयर्स व्हिचएवर इज अर्लियर. तो 65 पे वो रिटायर हो जाते हैं. अगर वो बहुत पहले पॉइंट हो गए तो 6 इयर्स मैक्सिमम सर्विस पे वो रिटायर हो जाएंगे, राइट. चलो वी हैव अंडरस्टूड. अच्छा, इनिशियली वी हैड वन इलेक्शन कमिश्नर व्हिच वाज इंक्रीज्ड टू 3 बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में 61st बार चेंज किया और हमने 1 से क्या कर लिया? 3 कर लिया अपने इलेक्शन कमिश्नर्स को. सो इनिशियली वी हैड ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर. मिस्टर सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. चलो, तो फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर. रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर. अगर इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करना होगा? चलो लेट अस अंडरस्टैंड. So removal of election commissioner. Now your election commissioner, the constitution specifically says the election commissioner shall be removed in the same way as a Supreme Court judge. Now your election commissioner is working for the betterment of the country, for proper, free and transparent elections to be conducted in the country. Hence his removal should be very tough कि भाई, because his work is to stop the winning party also, no. उनको ट्रांसपेरेंट रखना. he doesn't have to, he has to be neutral. He has to be neutral. So he cannot be inclining towards a particular party. Hence his removal should also be very tough. नहीं तो जो रूलिंग पार्टी है वो अपने हिसाब से अगर काम नहीं करेंगे तो हटा देंगे. अब सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे रिमूव होता है वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर रिमूव होता है. ये लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. अब तुम्हारे सवाल आ जाना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे रिमूव होता है. तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होना है तो लगभग 100 MPs ऑफ लोकसभा और या फिर 50 MPs of Rajya Sabha, they will go and give a resolution to the chairman of the house. Now who is the chairman of Lok Sabha? He is the speaker of India. Now who is the chairman of Rajya Sabha?
ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दे विल गो एंड गिव अ रेजोल्यूशन टू द ऑफिसर्स। के बाद क्या होगा, ये एक इंक्वायरी बैठवाएंगे, और अगर इंक्वायरी में प्रूफ हुआ तो एक रेजोल्यूशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराया जाएगा। अगर लोकसभा में भी जितनी स्ट्रेंथ है उसके 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग पास कर देगा, तो ही वुड बी रिमूव्ड। तो रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया इज वेरी टफ, क्योंकि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मीन्स आपको लगभग 545 सीट्स हैं लोकसभा में, उसके 2/3 एमपीज चाहिए फेवर में, 3rd एमपीज चाहिए, है ना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्टिस वर्मा का केस भी न्यूज में चलता है अभी। जस्टिस वर्मा कौन है? ही इज एन दिल्ली हाईकोर्ट जज, इन पे एलिगेशन लगाए 14 करोड़ कैश का। So removal of High Court judge is similar to removal of your Supreme Court judge, which is equivalent to the removal of a election commissioner. I hope you would have understood this topic. I hope you would have understood this topic completely and clearly. Chalo. So we have understood both of these. Chalo. Welcome to Water Day of 19th August, wherein we try to understand the newspaper. Chalo. एक न्यूज आई है, 200th birth anniversary celebration of महात्मा ज्योतिबा फूले. Now why is महात्मा ज्योतिबा फूले important? महात्मा ज्योतिबा फूले इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ही वॉज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। जिस टाइम पे ये लाइक व्हेन ही वाज लिविंग हिज लाइफ, उस टाइम पे इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा पीक पे था, और हमने बाद में जाके कास्टिज्म को टैकल करने के लिए अपने आर्टिकल 17 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में स्पेसिफिकली लिखा, अनटचेबिलिटी शैल बी एबॉलिश्ड। ऑल्सो रिमेंबर, दिस इज आर ओनली एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। ये इकलौता ऐसा राइट है जो एब्सोल्यूट है, इसमें इफ एंड बट नहीं लगता। हमारे देश में अनटचेबिलिटी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, एक क्राइम है, तो अनटचेबिलिटी एक क्राइम है। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज पीपल लाइक ज्योतिबा फूले, इन्होंने शेड्यूल कास्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, है ना। एंड ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। इन्होंने इंडिया में पहला गर्ल्स स्कूल खोला था, सोचो, फर्स्ट गर्ल स्कूल ऑफ इंडिया। आई गेस इट वॉज इन पुणे, ऑल गर्ल्स। तो थिंक हाउ विजनरी ही वॉज, है ना। और इनकी वाइफ का भी आपने नाम सुना होगा, सावित्री बाई फूले। तो ये हमारे देश के कुछ बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर्स हैं। सोशल रिफॉर्मर्स मतलब जो समाज में सुधार करते हैं। राजा राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, सर सैयद अहमद खान हो गए, और उसके साथ ही साथ उन्हीं में से एक थे हमारे ज्योतिबा फूले जी। अभी ज्योतिबा फूले जी की 200th बर्थ एनिवर्सरी आ रही है ना। तो अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे पे एड्रेस दिया, अच्छा एक चीज़ याद रखो, इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होइस्टिंग कौन करता है? द प्राइम फ्लैग होइस्टिंग कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखेंगे। चलो, तो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ज्योतिबा फूले जी का भी जिक्र किया, और मैंने कल भी आपको ये स्पीच कवर कराई थी। तो इनका फुल नेम हमें याद नहीं रखना, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इनको ये टाइटल मिला था महात्मा। तो ही गॉट दिस टाइटल कॉल्ड एज महात्मा ज्योतिबा फूले, तो महात्मा नाम का उनको टाइटल मिला हुआ था। So if let's say in your examination there is this question, who gained this popular term called as Mahatma, and if let's say Jyotiba Phule is there an option, you have to answer this question. So you must have to, you would have to choose him as an option. बाद में इन्होंने क्या किया? He married Savitri Bai Phule, also an exceptional social reformer. Then he also opened the first female, like he Savitri Bai Phule was the first female teacher of India, first female teacher इनकी wife थी of India, first female teacher of India. तो हमें कुछ कुछ चीज़ें इनकी याद रख के जानी है। वी डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर ही वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र, ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज मैरिड टू सावित्री बाई फूले जी, है ना। चलो, ही वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे लोगों को पढ़ा था। चलो छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। अब जैसे इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जेएस मिल जैसे लोगों को पढ़ा था। नाउ हु वाज जेएस मिल? जेएस मिल वाज अ जूरिस्ट, और जेएस मिल ने एक बात बोली थी, ही गेव द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल कहता है मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल। मतलब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, बस एक चीज़ देख लो, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल होना चाहिए, बट विच इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? मान के चलिए आप एक कंट्री में रहते हो जहाँ दो रिलीजन्स हैं, ए और बी। अब बी रिलीजन से 20% लोगों के पास है, 80% लोगों के पास। अब यूटिलिटेरियन का प्रिंसिपल बोलेगा कि इनके हिसाब से लॉज बना दो, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल। So this is completely not correct also. But J.S. Mill gave this principle of utilitarianism which you should at least know. फिर थॉमस पेन वगैरह भी यही थे आपके, इन्होंने ही गिव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, चलो ये छोड़ दो। फिर इसमें यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग, जस्ट रिमेंबर 200 साल हो रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल देखिए 1848 में इन्होंने पुणे में खोला था। ही ओपन स्कूल्स फॉर दलित्स एंड बैकवर्ड कास्ट। ही ऑल्सो ऑफर्ड नाइट स्कूल्स, जो हमारे मजदूर किसान के बच्चे हैं जो दिन में काम करते थे, उनके लिए नाइट स्कूल्स खोलते थे। तो ही ऑल इन ऑल ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हु कंट्रीब्यूटेड a lot to what India is currently, for the betterment of our social fabric, for the upliftment of the downtrodden people of the society.
इससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स. इन केस यू वांट दिस पीडीएफ, you should go and install our app. It's available on both Play Store and App Store. The link is in the description, है ना. चलो, now what is this news about? तो स्लाइनेक्स, अभी इसको देखो बहुत बेसिक से समझ लेंगे, बहुत मुश्किल दिमाग नहीं लगाएंगे. तो दिस इज योर वर्ल्ड. नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है? जब हम कंट्रीज़ के आपस के रिलेशंस को पढ़ते हैं, जैसे इंडिया का रिलेशन अफ्रीका के साथ कैसा है, इंडिया का रिलेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसा है, इंडिया का रिलेशन जापान के साथ कैसा है, इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ कैसा है, हाउ इज़ इंडिया डीलिंग विद कनाडा, हाउ इज़ इंडिया डीलिंग विद ब्राज़ील, इज डज इंडिया हैव एनी पॉलिसी फॉर अफ्रीका स्पेसिफिकली, इज इंडिया डूइंग समथिंग फॉर लेट्स से नॉर्थ ईस्ट, इज इंडिया डूइंग समथिंग विद चाइना, इज इंडिया डूइंग समथिंग विद आसियान. जैसे हमने कल ही आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ा था, इसको पढ़िएगा जाके प्लीज़. व्हाट इज एफटीए, एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड. चलो, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम देश के रिलेशंस पढ़ते हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बात बोली जाती है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज. परमानेंट एनिमीज, वी ओनली हैव परमानेंट इंटरेस्ट. हर एक कंट्री इस कंसेप्ट पे चलती है और अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो ग्रुप्स बनाते हैं. ग्रुप्स लाइक ग्रुप्स लाइक एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स लाइक यूनाइटेड नेशंस, ग्रुप्स लाइक नेटो जो मैंने अभी आपको बताया, ग्रुप्स लाइक अफ्रीकन यूनियन, ग्रुप्स लाइक यूरोपियन यूनियन, ग्रुप्स लाइक G20. अब इन कंट्रीज़ को पता है इन पे कभी अटैक भी हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ लेट्स से हॉट वॉर, जहाँ पे सीधी लड़ाई हो जाएगी. समथिंग लाइक ऑपरेशन सिंदूर, समथिंग लाइक व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, समथिंग विच इज हैपनिंग बिटवीन इजराइल एंड ईरान, सीधी लड़ाई, समथिंग विच टुक प्लेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट वॉर. तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप्स बना लेती हैं कि लेट्स से इंडिया, if China will attack you, we will help you. Although when Operation Sindoor was conducted, no country in the world came in support of India except for Israel. तो एक अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी होती तो a lot of countries would have supported us. That's a question to be asked to our ministers, right? तो अभी कंट्रीज ग्रुप बना लेती हैं. तो अब एकदम से तो वॉर लड़ने जाओगे नहीं. वॉर अगर जीतना है तो वॉर के लिए मॉक्स लगाने हैं. मॉक्स मतलब प्रैक्टिस करनी है. तो इसी प्रैक्टिस को करते करते कंट्री वन जब कंट्री टू के साथ सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज करे, है ना, सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज कि इन केस ऑफ अ वॉर हाउ वी विल टैकल इफ वी डू अ कलेक्टिव एफर्ट. अगर वॉर हुआ तो हमें कलेक्टिव एफर्ट लगाना पड़ा तो हम कैसे निपटेंगे. जैसे मान लीजिए नेटो की 32 कंट्रीज कैसे साथ में लड़ेंगे, इसी को बोलते हैं एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज कैन बी योर आर्मी का एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कैन ऑल्सो बी विद द नेवी, एक्सरसाइज कैन ऑल्सो बी विद द एयर फोर्स. और कुछ कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसमें ये सारे यूज हो जाती हैं, ऑल ऑफ दीज थ्री. देयर आर एक्सरसाइजेज जिसमें सिर्फ दो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, विच इज कॉल्ड एज बाइलेटरल एक्सरसाइज. बाइलेटरल मतलब टू. जब दो से ज़्यादा कंट्री पार्टिसिपेट करती है लेट्स से मोर देन टू, देन इट इज़ कॉल्ड एज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. ये पढ़ाया क्यों? पढ़ाया इसलिए क्योंकि न्यूज़पेपर में आज एक बाइलेटरल एक्सरसाइज का जिक्र है और उस बाइलेटरल एक्सरसाइज का नाम है स्लाइनेक्स. उस बाइलेटरल एक्सरसाइज का नाम है स्लाइनेक्स. तो हमारे लिए स्लाइनेक्स समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्लाइनेक्स कुछ नहीं है, इंडिया और श्रीलंका साथ में जब मॉक ड्रिल करेंगे सो दैट दे कैन टैकल एनी वॉर, इट विल बी कॉल्ड एज स्लाइनेक्स. यही एफर्ट जब इंडिया मंगोलिया नाम की बात करता है तो इट इज़ कॉल्ड एज नोमैडिक एलिफेंट. एक्सरसाइज का नाम है. आपको इन एक्सरसाइजेस के नाम आने चाहिए. इंडिया जब यही चीज़ जापान के साथ करता है तो इट इज़ कॉल्ड एज धर्मा गार्जियन, है ना. सो मल्टीपल एक्सरसाइजेस आर कंडक्टेड बाय इंडिया. अच्छा, इंडिया श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स तो करता ही और एक एक्सरसाइज और करता है विच इज कॉल्ड एज मैत्री. मैत्री स्लाइनेक्स. चलो, रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, नथिंग इज इंपॉर्टेंट नाउ. इससे हमें एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. स्लाइनेक्स 25 हुआ मतलब 25th एडिशन हुआ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. और वी कैन रिमेंबर बांग्लादेश के साथ हम एक्स संप्रीति करते हैं, नेपाल के साथ सूर्य किरण करते हैं, एक्सरसाइज सूर्य किरण, एक्सरसाइज संप्रीति विद बांग्लादेश, एक्सरसाइज इम्बेक्स विद म्यांमार, एक्सरसाइज मैत्री विद थाईलैंड, इट शुड बी श्रीलंका. देन मालदीव के साथ एक्सरसाइज एक्यूबेरन. रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. नाउ कमिंग ऑन टू दिस टॉपिक, इंडिया अचीव्स रिकॉर्ड डीप सी डाइव प्रेल्यूड टू समुद्रयान मिशन. तो यहाँ पे हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है व्हाट इज समुद्रयान मिशन एंड यू कैन अंडरस्टैंड द आर्टिकल ऑन योर ओन. व्हाट इज समुद्रयान? सपोज दिस इज द होल वर्ल्ड, है ना. अब ये जो वर्ल्ड में चाहे लैंड हो या वाटर, पर नीचे तो क्रस्ट ही है. मान लीजिए हम यहाँ पे रहते हैं तो क्रस्ट है यहाँ पे. यहाँ पे वाटर इस लेवल पे होगा तो यहाँ पे क्रस्ट होगी. कुछ इस तरीके से होगा.
ये लैंड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्रस्ट मिल गई, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो क्रस्ट यहाँ पे मिल गई। अब जब लैंड के नीचे मिनरल्स मिलते हैं, तो क्या इस क्रस्ट के नीचे मिनरल्स नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। पर इस क्रस्ट के नीचे के मिनरल्स निकालने के लिए चाहिए होगी एक हाई एंड टेक्नोलॉजी। एक हाई एंड टेक्नोलॉजी। वाई हाई एंड टेक्नोलॉजी? अरे यार, पानी के नीचे जाना है, फिर पानी में तुमको ड्रिलिंग करनी है, उसके बाद मिनरल्स को निकाल के एक्सट्रैक्ट करना है। इट विल बी अ वेरी टफ जॉब। अब दूसरा सवाल ये आना चाहिए कि क्या ये टेक्नोलॉजी दुनिया में एग्जिस्ट करती है? तो यस। पानी के नीचे, ओशियानिक क्रस्ट के नीचे यू फाइंड पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स। नाउ व्हाट आर पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स? ये कुछ नहीं होता है, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम जैसी चीज़ों से रिच होता है। तो नाउ एवरी वन वॉन्ट्स टू एक्सट्रैक्ट दीज। तो इसके लिए यू नीड टेक्नोलॉजी। Currently, 5 countries have the same technologies. Only 5 countries in the world have this technology of going into deep oceans, exploring the minerals, and then coming out. Now, now listen. So now India is gonna become the 6th country to have its own deep ocean exploration. अब पानी में हम कितना नीचे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पानी में लगभग 6 किलोमीटर नीचे। कितने किलोमीटर नीचे? 6 किलोमीटर नीचे। तो जो इंडिया का मिशन है दैट, और फिर वहां से जाके हम एक्सप्लोरेशन करेंगे किसका? वी विल एक्सप्लोर द पॉली मेटालिक नॉड्यूल्स। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, इंडिया यहाँ पे जाएगा और यहाँ से टेक्नोलॉजी आने के बाद यहाँ से जाके पॉलीमेटालिक नॉड्यूल निकाल देगा? तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक। इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, जैसे ये वाला वाटर बॉडी, इस पर किसी एक कंट्री का पार्ट नहीं है, किसी कंट्री का रूल नहीं है। ये वाटर बॉडी एक कंट्री का रूल नहीं है, इधर किसी एक कंट्री का रूल नहीं है, इधर एक किसी कंट्री का रूल नहीं है। अब यहाँ पे जो पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स हैं वो कैसे बढ़ते हैं? तो देयर इज दिस ट्रीटी बाय द नेम अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन फ्लैट। तो इस वाटर को डिवाइड करता है। अनक्लॉस कहता है कि किसी भी कंट्री के बाउंड्री के 12 नॉटिकल माइल्स तक। नाउ नॉटिकल माइल इज अ यूनिट जब हम जिसमें हम वाटर के लेंथ मेजर करते हैं। तो उसके लिए जैसे हम रोड को किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, यूरोप में माइल्स में मेजर करते हैं। वाटर इज मेजर्ड इन नॉटिकल माइल्स। द डिस्टेंस इन वाटर इज मेजर्ड इन नॉटिकल माइल्स, विच इज रफली अराउंड 22 किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री का स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वो उसमें कुछ भी कर सकता है। और 200 नॉटिकल माइल तक वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे कुछ लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, सोवरेनिटी नहीं होती है, देश नहीं होता है आपका। बट ये 12 नॉटिकल माइल तक सोवरेनिटी भी कंप्लीटली होती है। अब ये जो मान लो यहाँ तक तो 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल खत्म हो गया। अब इसका क्या होगा? हर कंट्री को ऐसे मिल जाएगा। इसको कहते हैं ओपन सीज। अब ओपन सीज में जो पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है इंटरनेशनल सीबेड, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, फ्लैट 2022, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये दुनिया में ये जो ओपन सीज हैं, इसमें पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स का ऑक्शन कराता है, कंट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए ऑक्शन कराता है। तो इंटरनेशनल सोलर या फिर एलोकेशन करता है, बेटर वर्ड वुड बी एलोकेशन। सो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है जमैका में। जमैका इज इन कैरिबियन आइलैंड्स। हमें इतना पढ़ना है। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने 2027 में 2027 में इसी काम को करके दिखाना है दुनिया को, और हम इस मिशन को बोल रहे हैं मिशन समुद्रयान, और इसको इंग्लिश में बोले तो डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन। इस मिशन को इंप्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करा रही है? सो द मिनिस्ट्री वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल न्यूज़ यही है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द सेशन। ये 3-4 चीज़ें आज इंपॉर्टेंट थी अखबार में। इफ़ यू वुड हैव heard me properly, if you would have made proper notes, I am very much sure that reading those articles will become very easy to you, right? Chalo. Also, an information, in case you are looking for a full-fledged preparation and a full-fledged course for CLAT, CUT or IPMAT, you can visit our, let's say, go and install our app, and also the website is under construction. And also you can give us a call on this number 880-88-885. Our team will get back to you. The call can be made anytime from 10 to 7 in the evening. For now, thank you so much. I hope you enjoyed the session. If you're liking it, please share it to people for whom this might be very beneficial. Thank you for now. I'll probably see you tomorrow now. Thank you.